ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیراعظم شہباز شریف کا ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم نے بجلی کی کمپنیز کو سیلاب زدہ علاقوں میں صارفین سے اگست کے بجلی کے بلوں کی وصولی سے فوری طور پر روک دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ماجد علی شاہ کی رپورٹ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں صارفین سے اگست 2025 کی بجلی کے بلوں کو فوری وصولی سے روک دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد متاثرہ علاقوں کو بجلی کے بلوں سے تفصیلی پیکیج کا اعلان بعد ازاں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے دکھوں میں مرہم رکھنے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں۔ متاثرین کی ریسکیو ٹیمیں بحالی کے لیے تمام تر اقدامات میں مصروف عمل ہے۔ وفاقی و صوبائی ادارے تمام کوششوں میں لگے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک سیلاب متاثرہ اپنے گھروں میں واپس نہیں چلے جاتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کیمرامین اذان علی کے ساتھ سید ماجد علی شاہ، NTN نیوز، لاہور۔ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی 12 روزہ قومی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ 14 سال کی 1.25 لاکھ بچیوں کو انجیکشن لگائے جائیں گے۔ مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف منڈی بہاؤالدین شاہد محمود کی رپورٹ۔ منڈی بہاؤالدین میں سروائیکل کینسر بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم کا افتتاح۔ بدست ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل وقار اکبر چیمہ، CO ہیلتھ ڈاکٹر کرن ارشد، DHO ڈاکٹر افتخار نے کیا۔ ڈاکٹر کرن ارشد نے اس موقع پر طالبہ کو ویکسین کا انجیکشن لگایا۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر کرن ارشد نے بتایا کہ ویکسینیشن مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس مہم میں 9 سے 14 سال کی 1.25 لاکھ بچیوں کو انجیکشن لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے ضلع بھر میں 102 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو سکولوں، گھروں میں جا کر ویکسینیشن کا عمل مکمل کریں گی۔ ہمارے پورے پنجاب کی طرح منڈی بہاؤالدین میں بھی SPV کی ویکسینیشن کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ صرف ایڈولسنٹ بچیوں کے لیے ہے۔ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو پورے ضلع میں یہ ویکسینیشن دی جائے گی۔ یہ کیمپین ہیومن پیپیلوما وائرس جو کہ سروائیکل کینسر کی کاز بنتا ہے، اس کے اگینسٹ ویکسینیشن کے لیے یہ کیمپین ہے، جو کہ بعد میں روٹین امیونائزیشن کا حصہ بن جائے گا۔ یہ ویکسین 9 سے لے کے 14 سال کی تمام بچیوں کو دی جائے گی۔ بہت اہم کیمپین ہے، جس میں ہم 9 سے 14 سال کی بچیوں کو جو ہے وہ کور کریں گے، ان کو انجیکشن لگائیں گے، یہ سروائیکل کینسر کو فیوچر میں ہونے سے بچائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ سروائیکل کینسر پاکستان میں تیسرا بڑا کینسر ہے، جبکہ دنیا میں ہر منٹ میں 2 خواتین اس کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتی ہیں۔ اب سروائیکل کینسر کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، جو پاکستان میں دستیاب ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ ساتھی رپورٹر عبدالوحید چودھری کے ساتھ شاہد محمود عاطف، بیورو چیف، NTN نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ گجرانوالہ میں میونسپل کارپوریشن کی پیرا فورس کے ہمراہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر حیدر علی کی زیر نگرانی لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹینڈنٹ رحمت علی انصاری، انسپیکٹر عرفان نسیم اور دیگر کے ہمراہ حافظ آباد روڈ، ملخہ صادق روڈ پر دکانوں کے آگے پختہ تھڑے شیڈز ہٹانے پر 36 دکانداروں کو سیل کر دیا گیا۔ تجاوزات کنندگان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی۔ دوران آپریشن 150 کے قریب عارضی تجاوزات کا موقع پر ہی صفایا کیا گیا۔ اسلامک لائٹ پبلک اسکول میں شاندار اور پر رونق جشن بچپن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ننھی طالبات نے نعت خوانی، تقاریر، ٹیبلوز کے ذریعے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جسے دیکھ کر مائیں خوشی سے نہال ہو گئیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والی والدہ نے انتظامیہ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا، اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اسکول پرنسپل نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں، طالبات کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ کھاریا کے FG ڈگری کالج میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ ناز پیش کیا۔ دیکھتے ہیں کھاریا سے عثمان جرال کی رپورٹ۔ جی بالکل، فیڈرل گورنمنٹ ڈگری کالج برائے طلبہ کھاریا کینٹ میں کالج کی لٹریری سوسائٹی کے زیر انتظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور گلدستہ نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیش کی گئی۔ پروفیسر طیب احمد صاحب نے نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے محفل نعت منعقد کروائی۔ طلباء نے اپنی دلکش آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ تقریب کے مہمان اعزاز ڈاکٹر عبداللہ مسعود صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ تقریب کے اختتامی مراحل پر کالج ہزار کے پرنسپل محترم پروفیسر محمد اسجد صاحب نے طلباء سے اپنے خطاب میں عملی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کانفرنس کے اختتام پر پرنسپل پروفیسر محمد اسجد صاحب نے مہمان اعزاز ڈاکٹر عبداللہ مسعود صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یادگاری شیلڈ پیش کی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ نقل مکانی کر کے آنے والے سیلاب متاثرین مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے نمائندے ملک نواز سیلاب متاثرین کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نواز بتائیے گا کیا کہنا ہے سیلاب متاثرین کا؟ جی بالکل، جلال پور پیروالا میں سیلابی تباہیاں اپنی عروج پر ہیں۔ جو اس وقت علاقہ مکین ہے، اپنی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں گیلانی سپر ہائی وے روڈ پر۔ جو لوگ یہاں اپنی مدد کے تحت آپ پہنچے، نہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خیمے ملے ہیں۔ میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، اسان بہادر پور شہر دے ہیں، سارے بالکل شہر بڑھ گئے، بالکل جہیں تو پانی لنگ گئے، تقریباً 12 فٹ دی کھڑائی پانی ہے، سارے گھر وہاڑ دے ویچن ساکو کوئی شاید سہولت کہنے ملے، لیکن وہ کیمپ بالکل کش کہنے ملے۔ روز آنن آخ دے وینن بھائی کیمپ ریسوں اے بھی شہر ریسوں کوئی شاید نہیں لیندے، چپ کا دے ایسی ہیں کوئی ہر کوئی ویندے پیا، لیکن ساری سہولت حال کہنی اڈے آدن ساکو کیمپ جا بہت تھا، کوئی شاید سہولت کہنی نہ واش روم میں دی، کوئی شاید سہولت کہنی جیتا بھی بال چھوٹے ونن ایڈے این واسطے آ بیٹھے ہیں، چلو بھائی اتنا سب کیمپ لا دیں، سب کوئی سہولت سب کہنے سارے گھر بار ایو سامان چاہیں تھوڑا بہت جڑا سارے کو بچ گئے، باقی ہر شہر سارے لوٹ گئے، صرف جان بچائے ہیں۔ جی آپ نے علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے ہمیں تحصیل انتظامیہ کی طرف سے کوئی ریلیف نہ کیمپ دیا گیا ہے، نہ کوئی راشن وغیرہ دیا گیا ہے۔ ہم اس وقت حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کیمپ بھی مہیا کیے جائیں اور ساتھ ساتھ ہمیں راشن بھی دیا جائے۔ جو ہمارے گھر بار تھے وہ سارے ڈوب چکے ہیں، جہاں پر پانی کی کھڑائی 12 فٹ تھی۔ جی لیاقت پور کا نوائی علاقہ موزہ بیٹ بھٹو میں پچھلے کئی دنوں سے پانی جمع ہے، جس کے باعث مقامی لوگ ان کے جانور پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی والے ضرورت مندوں سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ متاثرہ خاندان کے افراد اب تک محفوظ مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ فوری مدد کی اپیل کی جائے تاکہ ان کی جان و مال کو بچایا جا سکے۔ ہمارے نمائندے جمشید سمد وہیں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جمشید مزید بتائیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں بیٹ زہر پیر کا علاقہ ہے بیٹ بھٹو، اور یہاں منچنا بند کے اوپر یہاں بے یارو مددگار جو لوگ متاثرین ہیں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا مال جو ہے پیچھے پانی میں پھنسا ہوا ہے۔ جو بیڑے والے ہیں ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی ایڈ سے سو کے طرح مال کتنا اتھا کرے تے کتنے ڈھید ہوئے؟ چوتھا جڑا اتھاں 20 جانور پھسے پن، 4 بندے اتھے موجودہ بیٹھن تے حالات یہ دو اتنا خدا خوفی نہیں دو سارے سامان دو نہ رات ٹوپے نے بندے تارتے چاہی ویندن چوری جیرے بیڑے والے کنے ویندو آدن 50,000 لاکھ روپیہ ذمہ دار بھی شفارت نہیں کرنے پہ۔ اے سیاسی دور نہیں، اے امچان دا دور ہے۔ ہر بندے دا حق کے دو سہولت سا کو دیتی ونجے، اے ووٹ نہیں دو نون دیوں جا پیپل پارٹی کی دوں، اے پارٹی نہ جانن، اے غریب دے ہمدردی کرن، غریب دے نال تعاون کرن۔ اے ہر بندہ ذمہ دار ہے جا کوئی شاہ مطلب تک اپنے مطلب تک راندن، ووٹ ہوون تا گڈیاں نہیں ممدیاں تو غریب بڑھ دے پندا اوڈے پرواہ کا نہیں۔ مہربانی کی تھی ونجے جی بالکل، جیسا کہ متاثرین کی بات آپ نے سنی، ان کا مال جو ہے پانی کے اندر ہے۔ 4 دن سے 4 آدمی جو ہیں ان مال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہاں پر تک نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں سواری ملی ہے جو کشتی وغیرہ جو وہاں سے ہم اپنا مال لیے ہیں یا اپنے جو آدمی پھنسے ہیں انہیں لے ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ جی سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے چلا گاہ حضرت بو علی قلندر شرف دین کا مین روڈ سیلاب کی نظر ہو گیا، جبکہ عرس کا سلسلہ جاری ہے اور زائرین کی آمد و رفت شدید متاثر ہے۔ وہیں موجود ہیں ہمارے نمائندے کیسر وینس، ان سے بات کریں گے۔ کیسر، کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس کے بعد؟ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیور دربار ابو علی قلندر چلا گاہ پر، جہاں پر جو ہے حالیہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے مین روڈ جو بہہ چکا ہے، جبکہ
10 से 15 फुट के गड्ढे बन चुके हैं, जबकि उर्स का इनेकाद भी कर दिया गया, जबकि ज़ायरीन को जो है आने जाने में मुश्किलात का सामना। इस वक्त हमारे साथ एक ज़ायरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, हालिया सैलाब की वजह से क्या तबाहकारी हुई है और किन मुश्किलात का सामना है? उर्स मुबारक भी है जी। उर्स शाह अशरफ का अबू अली कलंदर का उर्स है यहाँ, और सड़क बिल्कुल तबाह हो गई, और मजदूर तबका जो है ना वो बिल्कुल फारग हो गया, उनके कारोबार बंद हो गए हैं, उनके जो दुकानें लगाते थे वो भी रास्ते तबाह हो गए हैं, और जो वहाँ आ रही है दरबार पे मज़ार पे उर्स लगा हुआ है और वो बड़ी मुश्किल तरीन का सामना कर रही है। ठीक है ना, तो हमारी ये दरख्वास्त है DCO से भी, अफसर से भी, ये जो रोड है इसको मुकम्मल किया जाए, ठीक है ना, ताकि आवाम के लिए दुश्वारी ना हो, मज़दूरों के लिए मुश्किल ना हो। वो बिल्कुल फारग बैठे हैं, उनका जो कारोबार है बिल्कुल तबाह हो गया है। जी बिल्कुल, ज़ायरीन का कहना है कि जो है चिलागाह पर उर्स मुबारक का सिलसिला वो भी जारी है। दूसरी जानिब जो है हालिया सैलाब की वजह से जो है रोड जो है बह चुका है और तमाम तर जो है दुकानें वो जो भी बह चुकी है। दूसरी जानिब जो है यहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर रोड की बहाली की जाए, ताकि जो है चिलागाह के ऊपर जो है ज़ायरीन इनका आ रहे हैं उनके लिए जो मुश्किलात पैदा आ रही है वो कम हो सके, और जो है रोड की बहाली हो सके, ताकि ज़ायरीन बआसानी से यहाँ जो है उर्स के ऊपर जो है वो हाज़िरी दे सके। जी CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की ज़ेर निगरानी जलालपुर पीर वाला इनायतपुर रोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। ऑपरेशन में CPO मुल्तान की खुसूसी हिदायत पर एलीट फोर्स हिस्सा ले रही है। मुल्तान एलीट फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मुतासरीन के 25 जानवरों को रेस्क्यू किया, उनकी असल मालकान के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जानवरों के मालकान ने रेस्क्यू होने पर CCPO मुल्तान का शुक्रिया अदा किया और बहुत सारी दुआएं दी। उस मौके पर CPO मुल्तान का कहना था कि हर एक अफसर और जवान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए और हिफाजत पर मामूर है। मुल्तान पुलिस सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की जानिब से शहरियों के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र दरियाओं, नहरों और दीगर आबी मकामात पर नहाने और कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने खबरदार किया है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानी नुकसान से बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आरिवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाजी उमैर, बताइएगा और क्या क्या अहकाम दिए गए हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सलामती के पेश नज़र ज़िला भर में दरिया सतलुज और तमाम नहरों में नहाने, तैरकी और कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये हुक्म ज़ाब्ता फौजीदारी 1898 की दफ़ा 144 के तहत जारी किया गया है, जो 15 सितंबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमर रहेगा। पाबंदी के दौरान किसी भी शहरी को दरिया सतलुज और नहरों में नहाने और कश्ती रानी की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का कहना है, अवामुन्नास अपनी और दूसरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करें, ताकि डूबने जैसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाना हुकूमत वक्त की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जी चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हिदायत पर रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ डिस्को सपोर्ट यूनिट, पुलिस और रेंजर्स के ताउन से सब डिवीज़न में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस दौरान बहुत से बिजली चोर और मीटर रिवर्सर रंगे हाथों मौके से फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट की ज़ेरे क़ियादत ईस्टर्न सर्कल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उमर बिलाल की हिदायत पर एक्शन शालामार फैज़ान रियाज भट्ट की ज़ेरे निगरानी इंचार्ज लेस्को DSU यूनिट शहजाद जवेद चेयरमैन ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा अलगनी गार्डन, ड्रीम गार्डन, तेजगढ़ रोड, स्वान टाउन, पठान स्कीम और वाड़ा मोला वसान के इलाका में बिजली चोरों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए जाली ट्रांसफार्मर्स और बोगस मीटर अपने कब्जा में लेकर गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके मुतलका थाना में FIR का अंदराज करवाकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि मौका पर से 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरी जानिब एक्शन भगवानपुरा डिवीज़न आबद गुजर और इनकी टीम
DA सजाद आलम, SDO मदीना कॉलोनी अतावला खटक, SDO कोट ख्वाजा सईद नुमान सिद्दीक और लाइन सुपरिटेंडेंट हुसैन शाह गुज्जरपुरा पुलिस के हमरा रात गए कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी करने और करवाने वाले 3 मीटर वर्स करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ईस्टर्न सर्कल SC उमर बिलाल ने सख्त हदायत जारी की, बिजली चोरी करने वाले और इनके सहूलतकारों के साथ भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन राना आमिर के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। पंजाब पुलिस के लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के आदाद-ओ-शुमार जारी। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के लाहौर में सुबह भर में सर्च स्वीप कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस ने 24 घंटों के दौरान कार्रवाई के हवाले से कॉम्बिंग ऑपरेशन के दादोशुमार जारी कर दिए। पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 462 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए, 12,777 से ज़ायद मुश्तबा अफराद की चेकिंग की, 47 मशकूक अफराद हिरासत में लिए गए। 27 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन 3,540 से ज़ायद अफराद से पूछकर 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत लिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना था, संगीन जुर्म में मलवी 290 इश्तिहारी, 125 अदालती मफरूर, 80 आदि मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए। जुर्म पेशा मुश्तबा अफराद के कब्जे से बड़ी तादाद में नाजायज़ असला गोले भी बरामद की गई। जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान कैफरे किरदार को पहुंचे, 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान का कहना था, मुल्क दुश्मन और जुर्म पेशा नासर का मुहासबा करने के लिए सर्च स्वीप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखेंगे। कैमरामैन राना आमिर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। हासिलपुर आफत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के लिए प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन मुतासरीन की आवाज़ बना, तो दूसरी जानिब मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर होने वाली फैमिलीज़ में लंगर भी तकसीम किया गया। देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। आज हासिलपुर प्रेस क्लब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासिलपुर की तरफ से एक सैलाब ज़दगान के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी हाजत पूरी करेगा, अल्लाह ताला इसकी आखिरत की हाजत पूरी करेगा, और जो शख्स किसी मुसलमान पर तंगी आसान करेगा, अल्लाह ताला इस पर दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। प्रेस क्लब व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासिलपुर का सैलाब मुतासरीन के लिए एक ऐसा इकदाम। प्रेस क्लब व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासिलपुर ने मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया। लंगर का एहतमाम ज़ेर क़यादत सदर प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासिलपुर नईम अनवर चौधरी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुदस्सिर हुसैन की ज़ेर निगरानी प्रेस क्लब हासिलपुर में हुआ। बाद सदर प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी और जुमला बिमरान ने सैलाब से मुतासर होने वाले इलाका जात में घर घर पहुँच कर लंगर तकसीम किया। आफत की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब समेत हर मुखय्यर हजरात को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना वक्त की अहम जरूरत है, ताकि सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद को दोबारा सहारा मिल सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, NTN हासिलपुर। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की सरबराही में किला गुज्जर सिंह में हफ्तावार अर्दली का इनेकाद किया गया। अर्दली रूम में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने 27 अपीलों पर समाअत की। देखते हैं राना सरवर की रिपोर्ट। लाहौर पुलिस में सज़ा और जज़ा का अमल जारी है। DIG ऑपरेशन का पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में हफ्तावार उर्दू रूम का इनेकाद किया गया। DIG ऑपरेशन ने 27 अपीलों पर समाअत की। मुख्तलिफ महकमाना सज़ाओं की 5 अपीलें मुस्तरद, जबकि 15 एहलकारों को आखिरी वार्निंग जारी की गई। DIG ऑपरेशन ने अपीलें सुनते हुए कहा कि 6 माह से ज़्यादा अरसे से नौकरी से बर्खास्त एहलकारों की भी अपीलों पर फैसला जारी कर दिया गया। गैर हाजिर के मुरतब 6 एहलकारों को नौकरी पर बहाल, जबकि आइंदा मुनज़्ज़म ड्यूटी का भी हुक्म जारी कर दिया। DIG ऑपरेशन की एहलकारों को जिम्मेदारी ऐसा तरीके से सर अंजाम देने का भी हुक्म। DIG ऑपरेशन का कहना, लाहौर पुलिस में नज़्म ज़ब्त कानून की पासदारी पर कोई समझौता नहीं। DIG ऑपरेशन का मज़ीद कहना था, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। उर्दू रूम का मकसद खुद एहतसाबी के अमल को बरकरार रखना है। उर्दू रूम में ज़ाती मिसाइल लेकर अफसरान जवान भी पेश हुए। DIG ऑपरेशन ने मिसाइल सुने, मौके पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। SP कैंट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा का कैंट डिवीज़न के हसास गिरजाघरों का दौरा। SSP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक किया, एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की। देखते हैं इसी बारे में राना सरवर की रिपोर्ट। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा का कैंट डिवीज़न के 7 गिरजाघरों का दौरा। SP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक कर अलर्ट और ब्रीफ भी किया। SP कैंट काजी अली रज़ा ने जवानों के हमरा फील्ड में मौजूद रहे।
SP कैंट का कहना था कि जजिस इंतजामिया की मुशावरत से भरपूर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तमाम सरकार अफसरान अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। गिरजाघरों की छतों पर मामूर एहलकार अफसरान को हाई अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की। SP कैंट का कहना था कि दुआएं तकरीबात पर आने वाले शुल्कों को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। पार्किंग को गिरजाघरों से दूर बनाया गया है। CCTV कैमरों से निगरानी जारी है। SP कैंट का मजीद कहना था कि मशकूक अफराद समान अतराफ की नकल और हरकत पर कड़ी नज़र रखें। दुआएं तकरीबात के इख्तिताम तक एहलकार भी ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना था। कैमरामैन राना आमिर के साथ राना सरवा NTN न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर की तरह सियालकोट की तहसील पसरूर में सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म हो गई, मगर ज़मीन से उगने वाली सब्ज़ी और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी कामरान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर सियालकोट तहसील पसरूर में। सैलाब तो चला गया, बारिशें भी ख़त्म हो गई, लेकिन महंगाई का तूफ़ान छोड़ गया। इस वक्त मैं सब्ज़ी की रेडी पर मौजूद हूँ। ये सब्ज़ी का रेट, जो टमाटर का रेट है वो 250 रुपये किलो है, और जो गोभी का रेट है वो 300 रुपये किलो है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मेरे साथ एक शहरी है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले के क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप इस हवाले से बताएंगे कि सब्जियों के रेट के बारे में क्या? जी सब्जियां के रेट माशाल्लाह अन्ने के ज़्यादा, अन्ने के गरीब दी पहुँच तो दूर ने। मैं गोभी का रेट पूछा तकरीबन 250 रुपये उन्होंने दसिया। अगर भिंडी पूछी हो 300 रुपये, करेला दसिया हो 350। गरीब सिर्फ रह गया आलू खान वास्ते। मेरी अपील है DC सियालकोट साहिबा से, और मेरी अपील है जनाब मोहतरम मरियम नवाज साहब से कि गरीब का कुछ सोचें। इतनी महंगाई में हम कैसे जो है घर का गुजारा करेंगे? हमारी तनख्वाहें भी कम है। अगर बाहर सब्ज़ी आ जाए, गोश्त तो हम खा नहीं सकते, गोश्त का भी रेट काफ़ी है। अगर आ जाके सब्जियां की कीमतें जो वो इतनी बढ़ गई हैं कि गरीब की पहुंच से दूर है। हम आलू खा रहे हैं, वो भी 100 रुपये किलो है। मेरी मोहतरम मरियम नवाज से अपील है कि खुदारा गरीब का कुछ सोचें। जी आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने क्या से सब्जियों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इस चीज़ का नोटिस ले। जी एक तरफ वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतारिक हैं, तो दूसरी तरफ सैलाबी रेलों से फसलों की तबाही ने सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। NTN न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद माजिद अली वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माजिद, क्या सूरत हाल है मार्केटों में, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ हुकूमत मुतहरक है, तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जानिब से भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरक कर दिया गया है। DCO कमिश्नर लाहौर भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खुद निगरानी करते नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ देखने में आया कि मुल्क में दीगर इलाका जात में जो सैलाब इलाकों में, उसकी वजह से लोगों की फसलें तबाही के दहाने पर पहुँच गई। फसलें सैलाब की नज़र होगी। ज़ेरे अब आने वाले इलाकों में ज़मींदारों की फसलें तबाह होने के बायस सब्जियों की रेट में भी वाज़ेह इजाफा देखने को मिलता है। मेरे पास एक सब्ज़ी फरोश मौजूद है, उससे दरियाफ्त करते हैं। जी भाई आप बताइएगा। हाँ जी भाई पहले अरबी 100 रुपये किलो सी, हम 200 रुपये किलो ही पई है। आलू 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो होए पे ने। हर चीज़ सैलाब की वजह से उत्ते चली गई है। सब्जियां डुब गई ने, ठीक है। हुण हर चीज़ का रेट वध गया, असीं की कर सकते हैं। महंगाई बहुत तेज़ हो गई है। सब्जियां देख लो कितने पड़ गई। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरक किया गया है। तो दूसरी तरफ देखने में आया कि सैलाब की वजह से मुतल्लिका लोगों की ज़मीनें मुतासर हुई, जिसकी वजह से लोगों की सब्जियां मुतासर हुई, लोगों के बागात ख़राब हो गए, जो कि पानी की नज़र बह गए। और उस वजह से मुल्क में अगर देखें तो सब्जियों के रेट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जी लाहौर में जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरियों की ज़िंदगी मफलूज। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DC लाहौर को मुतारिक किया गया, तो दूसरी जानिब LWMC की अदम तवज्जो की वजह से नश्तर जोन में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं। हमारे नुमाइंदे माजिद अली वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माजिद, कैसे इंतज़ामात हैं सफाई के, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जानिब से लाहौर को साफ़ करने के लिए मुस्बत इक़दामात और डायरेक्शंस जारी हैं, तो दूसरी तरफ CEO LWMC बाबर साहब दीन साहब की अदम तवज्जो के बाइस लाहौर फ़िरोज़पुर रोड नश्तर जोन के मतअद्दिद इलाका जात में गंदगी के ढेर हैं। बर वक्त कूड़ा करकट नहीं उठाया जा रहा, शहरियों की ज़िंदगी मफलूज बनकर रह गई है। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद है, उसे दरियाफ्त करते। जी बेटा आप बताइएगा क्या हो रहा है? इधर कोई भी नहीं आ रहा काम के लिए, ना कोई इधर देखे ना लेडीज़ कैसे गुजर रही हैं।
इधर सफाई होती ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ खाने में कहीं भी सफाई नहीं है, ऐसे ही कूड़े पड़े हुए हैं, कोई ख्याल नहीं करता, कोई भी नहीं आता है। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुबैना इल्ज़ाम किया जा रहा है कि मुतलका मुलाजमीन की जानिब से बर वक्त हाज़िरियाँ भी बोगस लगाई जाती हैं, ये मौके पर नहीं आते और सफाई को बर वक्त यकीनी नहीं बनाते। तो दूसरी तरफ CEO LWMC की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि लाहौर को साफ़ करने के लिए मुतहरक हैं। जी आज क्रिकेट के सबसे बड़े और सनसनीखेज मुकाबले का दिन है, जब एशिया कप के अहम मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शायकीन अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। शायकीन का कहना है पाकिस्तान जीते, भारत के खिलाफ जीत हमेशा यादगार होती है। मजीद जानते हैं, शायकीन के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुबशिर फरीद। मुबशिर, बताइएगा मजीद क्या कहना है शायकीन का? जी बिल्कुल, एशिया कप 2025 का आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जिसमें दो रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। हबीबाबाद के शायकीन क्रिकेट हमें बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं, जो मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शायकीन क्रिकेट एक मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आज एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगा। पहले मैच के जीतने से पाकिस्तानी टीम के जो मोराल बुलंद है, और इंशाल्लाह हमारी टीम भारत के खिलाफ भी इसी जो कारकर्दगी को वो बरकरार रखेगी और भारत से इंशाल्लाह हम लोग मैच जीतेंगे। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं जो टीम के साथ हैं। हमारी बैटिंग लाइन इंशाल्लाह दोबारा अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस हैं। हमारी बॉलर जो हैं वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। जी शायकीन क्रिकेट का भी यही कहना था कि इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। जी